السلام علیکم ناظرین، دیونا میں موجود یہ ہے جامعہ صفۃ المدینہ، جہاں پر آج سے 7 سال قبل اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور یہاں پر طلباء کو حفظ کی تعلیم دی جاتی رہی۔ آج 7 سال بعد علاقہ کی اشد ضرورت محسوس کرتے ہوئے یہاں پر درس نظامی کے کورسز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آج اس درس نظامی کے کورسز کا آغاز قبلہ حضور غلام بشیر نقشبندی، جنہوں نے اس مدرسے کا سنگ بنیاد بھی رکھا تھا، وہی سب سے پہلا سبق اس مدرسے کے طلباء کو پڑھا کر کورس درس نظامی کا افتتاح کریں گے۔ اس وقت درس نظامی کے افتتاح کے لیے ایک تقریب جس کا عنوان بسم اللہ بسلسلہ درس نظامی رکھا گیا ہے، اس تقریب کا اس وقت آغاز ہو چکا ہے۔ آئیے مدرسے میں چلتے ہیں اور آپ کو اس تقریب کے بھی روح پرور مناظر دکھاتے ہیں۔ تقریب بسم اللہ بسلسلہ درس نظامی کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام الہی سے کیا گیا، جبکہ ادارہ حضا کے طلباء نے انتہائی مؤثر انداز میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر کے حاضرین کو اپنی صلاحیتوں سے روشناس کروایا۔ تقریب صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی کی آمد پر ان کا والہانہ عقیدت سے استقبال کیا گیا۔ تقریب کے مہمانان گرامی پیر سید صابر حسین شاہ گورسیاں شریف، پروفیسر محمد علی طاہر، پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ خواسپور، ڈاکٹر محمد رضوان یونس لیکچرار یونیورسٹی آف گجرات، ڈاکٹر محمد شعیب سیالوی گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول لالا موسیٰ، پروفیسر حفیظ الرحمان گلیانہ، علامہ غلام رسول ناظم جامعہ شاہ جماعت ایجوکیشن کیمپس گل، قاری محمد شریف سیالوی صدر جامعہ صفۃ المدینہ چھنی چوک دیونا، علامہ محمد اشرف پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ڈھینڈا شریف نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن اترا، اپنے صحابہ کو سنایا۔ قرآن عربی زبان میں اترا ہے، صحابہ کی مادری زبان کیا ہے؟ عربی ہے۔ پھر بھی حضوروں نے صرف قرآن سنانے پہ اکتفا نہیں کرتے، قرآن سکھاتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضور نے صرف قرآن پڑھ کے سنایا ہی نہیں بلکہ قرآن سکھایا بھی۔ تو قرآن پڑھانا بھی حضور کی سنت ہے، قرآن سکھانا بھی حضور کی سنت ہے۔ اگر پہلے دور کو ملحوظ حلوظ خاطر رکھا جائے اور آج کے وقت کو دیکھا جائے تو 2 چیزیں کام نہیں کر رہی، ایک حساب کام نہیں کر رہا اور دوسری ہدایت کام نہیں کر رہی۔ یہ دونوں چیزیں کام نہیں کر رہی، لیکن پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے، غزہ بھی بہت زیادہ
सुन रहा है, उलमा को सुन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हदायत को कबूल नहीं कर रहे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी, अल्लाह ऐसे इल्म से पनाह दे जो नफा मद ना हो। इल्म नाफे की हजूर ने दुआ मांगी है, और इल्म नाफे की वजाहत उलमा की मौजूदगी में इतनी लंबी चौड़ी तो नहीं करूँगा। बहरहाल ये कहा गया कि वो इल्म नफामंद है जो बंदे को अपने नफ्स की पहचान और अपने खालिक की पहचान अता फरमाए। और नादा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। और ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमिन, ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। जब ये स्कूल सिस्टम नहीं था, कॉलेज यूनिवर्सिटी सिस्टम नहीं था, तब क्या था? तब तालीम का अंदाज क्या था? वो ये मदारस ही थे जो तालीम देते थे। अब दूसरा सवाल है, जब मदारस थे, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज नहीं थी, तो तब जो तालीम दी जा रही थी, क्या उस तालीम में सियासत नहीं थी? क्या उस तालीम में मईशत नहीं थी? क्या उस तालीम में मेडिकल साइंसेस नहीं थी? क्या उस तालीम में जोग्राफिया नहीं था? क्या उस तालीम में सनत और इर्फत नहीं थी? तो क्या तब इन सब सब्जेक्ट्स की, इन सब फैकल्टीज की स्पेशलाइजेशन होती थी? कि आज 4 साल लगा लिए, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स मिला के पढ़ लिए, या इसके अगले 4 साल किसी एक सब्जेक्ट में तखस्सुस जो है, स्पेशलाइजेशन जो है, वो होती थी? आबादी वकार वो तखस्सुस भी होता था। एक है नूर और दूसरा है रोशन किताब। जमहूर मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तेफाक है, जिनमें से चंद मखसूस खुसूसिया के नाम ये हैं। तकरीब के मेहमान खसूसी किबला हजूर गुलाम बशीर नक्शबंदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अरसा 7 साल कबल मदरसे का संगे बुनियाद रखा था, और अल्लाह ताला की करम नवाजी और इंतज़ामिया की अनथक मेहनत के बाइस इलाका भर से बच्चे दीनों दुनिया की तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस इदारे को हर कदम पे अपनी ताइदाद से, अपनी इनायात से नवाजा है। ये मेरे अज़ीज़ हैं हाफ़िज़ मोहम्मद आसिम साहब और इनके तमाम रफ़ाक़ा, इनके तमाम साथी, मैं इन सब को ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने अनथक मेहनत की है, इन्होंने अपने बाकी तमाम कामों पर इदारे को तरजीह दी है, और आज हम देख रहे हैं कि एक गुलशन खिला हुआ है, जिस गुलशन में तालीम कुरान की खुशबू है। आज दरस निज़ामी का आगाज़ हुआ है, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से कि जिस तरह गुज़श्ता दिनों में उसने हमें कामयाबियाँ अता की हैं, इस इदारे से ऐसे उलमा तैयार होंगे जो माशरे में अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे, अमन को फ़रोग़ देंगे, मोहब्बत को फ़रोग़ देंगे, और जो माशरती ज़रूरत है दीनी इल्म के हवाले से इंशाअल्लाह ये इदारा अहले इलाका की ज़रूरत को पूरा करेगा और पूरा कर रहा है। दुआ गो अल्लाह ताला इस इदारे को और कामयाबियाँ अता फरमाए। इदारा हाजा के नाज़िम आला हाफिज़ आसिम अली चिश्ती और मुअज़्ज़ज़ मेहमान अल्लामा मोहम्मद अशरफ ने इदारा की तारीख़ और तलबा को दी जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफ किया। हमारे बहुत ही मुखलस दोस्त मेरे उस्ताद जो जामिया के बानी भी हैं, हाफ़िज़ असजद महमूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, 2016 में उनकी जनवरी में विसाल हुआ था। उनके वालिदैन ने उनके फिर साल सवाब के लिए 2.5 कनाल का रकबा जामिया के लिए वक्फ़ किया है, ठीक है, जो अभी तक तकरीबन 3.5 कनाल में हो चुका है। उसके बाद तो आपका इरादा सी कि इस इलाके के अंदर एक दीनी इदारा कायम किया जाए,
जो आपकी हयात में तो नहीं काम हो सका, आपके विसाल के बाद फिर इस इदारे का बाकायदा संग बुनियाद रख दिया। इसकी संग बुनियाद के लिए साहबजादा पीर गुलाम बशीर नक्शबंदी साहब ज़ेब आस्ताना अलिया बाबरी शरीफ उन्होंने रखी, और पीर हसामुद्दीन शाह साहब ज़ेब आस्ताना अलिया सरविया चिश्तिया चिकोरी शरीफ साहब उन्होंने रखी थी। बाकी इलाके भर के उलमा ने, अहबाब ने शिरकत की। हमने बुनियाद रखते ही जामिया में क्लास का आगाज़ कर दिया था। शोबा हिफ्ज़ हम पढ़ा रहे थे। अभी हमने शोबा हिफ्ज़ के साथ साथ प्राइमरी पास तलबा को 6वीं, 7वीं, 8वीं 3 क्लासें भी शोबा हिफ्ज़ के साथ पढ़ा रहे हैं, और अभी दर्स निज़ामी का आगाज़ कर दिया। इसके साथ इंशाल्लाह मैट्रिक FA BA की तलीमी तलबा को दी जाएगी इस जामिया से। तकरीबन 30 के करीब जो हफ़ाज़ हैं उनकी दस्तारबंदी इस जामिया से हो चुकी है। अभी तकरीबन 60 के करीब ज़ेर तलीम तलबा जामिया में। हम यही कहना चाहते हैं कि ये जामिया जो है अहले इलाका के लिए हमने इसका बुनियाद रखा। इसमें हम तलबा को दीन के साथ दुनियावी तलीम भी, असली तलीम भी, दोनों तलीमें दे रहे हैं, और एक आंख से तलबा को हम रोशन नहीं कर रहे। जो तलबा इस जामिया में आते हैं उनको हम हिफ्ज़ के साथ साथ स्कूल की तलीम भी देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने जो शेड्यूल क्लास का बनाया था वो सुबह 7 से 5 बजे तक तलबा जो घर से आ भी जाते हैं वो घर वापस भी चले जाते हैं। बाकी मुकीम तलबा भी यहाँ रहते हैं। जामिया सुफ़तुल मदीना ये आलम इस्लाम की अजीम इल्मी और रूहानी दस्तगाह दारुल महमदिया गौसिया बेराशिफ, जिसके मोसिस रबानी हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह लाज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। तो इस इदारे का भी ताल्लुक़ उसी इदारे के साथ है। मरकज़ वो है, ये इदारा उसकी ब्रांच है, और उसी के इल्मी नेटवर्क के मुताबिक ये अपना इल्मी नेटवर्क आगे बढ़ाएगा। इस इदारे में और बाकी आम मदारस के अंदर एक फ़र्क नज़र ये आता है कि इस इदारे की चूँकि पीछे ताल्लुक़ है हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह लाज़री रहमतुल्लाह अलैह, तो उनकी सोच और फ़िक्र ये थी कि मुआशरे को ऐसे लोग प्रोवाइड किए जाएँ जिनकी दोनों आँखें बिना हो, कि दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी। तो इस इदारे के बुनियादी मकासद में से ये भी है कि यहाँ आने वाले तलबा को दीनी हवाले से भी पूरी तालीम दी जाए, और दुनियावी उलूम के ऊपर भी साथ साथ जो जदीद असरी उलूम है वो भी साथ साथ पढ़ाई जाए। जी नाज़रीन, आपने इस दरस निज़ामी के इफ्तिताह की तकरीब भी देखी, जो मुकर्रिरीन थे उनके खिताबात भी सुने, और इसी जामिया के वो बच्चे जो जहाँ पर ज़ेरे तालीम है उन्होंने भी अपने जवाहिर से आपको रोशनास करवाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो लहद से महद तक। इसी तरह के वो इदारे हैं, यही वो दारुल उलूम है, यही वो जामिया सुफ़तुल मदीना वो इदारा है जहाँ पर इन बच्चों को दीनी, दुनियावी और असरी तालीम जैसे जेवर से आरास्ता किया जा रहा है। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।